नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं आरजे अनिमेश, और जैसा कि मैंने आपको वादा किया था, शाम के 5 बजे बिल्कुल तैयार आ गया हूं लेकर हमारे आज के स्पेशल गेस्ट को। इनको किसी तरह की कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। जब भी चैलेंजिंग रोल और पावर हाउस को कहा जाता है, जब भी अच्छे अच्छे रोल्स की बातें होती है, चैलेंजिंग रोल्स की बातें होती है, तो इनका नाम सबसे पहले आता है। जी, हमारे साथ इस वक्त है नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्टर दिव्येंदु भट्टाचार्य। बहुत सारे चैलेंजिंग रोल्स में वे नजर आ चुके हैं, और अब एक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं, एक वेब सीरीज अनदेखी में। अनदेखी को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है इनका किरदार, यानी कि डीएसपी वरुण घोष का किरदार। हमारे सॉन्ग राइट नाउ एंड आवर फेवरेट दिव्येंदुदा। दिव्येंदुदा का हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे 91.9 फ्रेंड्स एफएम में। दिव्येंदुदा, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन फ्रेंड्स एफएम। Thank you so much, Animesh. Thank you so much for inviting me for this in the show, and I'm so glad to be here and talk to you, my fans, and everybody in Calcutta and throughout India. So I'm so overwhelmed. Thank you so much. सुपर सर। बहुत अच्छा लग रहा है आपको हमने आज पाया है। वैसे मैं जानना चाहूंगा, सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगा पूरे टीम को, अनदेखी को। काफी अच्छा रिस्पांस जो वो नजर आया है। सर, ओवरऑल एक्सपीरियंस एक्चुअली हमारे साथ शेयर करें प्लीज। Yeah, fantastic. Actually, Andeki is one of my very favoriteest show. Most so. And it's a fantastic working experience. It is একটা খুব টান টান গল্প নিয়ে দেখি এটা তৈরি হয়েছে এবং it based on real events of course। এখন তো মানে বেশি কিছু আন্দিকি সম্বন্ধে বলতে পারবো না, তার কারণ হচ্ছে আন্দিকি আমি এখনো স্পয়লার করতে চাই না, কারণ অডিয়েন্স এখনো পর্যন্ত এনজয় করছে, জাস্ট রিলিজ হয়েছে এবং দেখছে অডিয়েন্স। তো দ্য স্ক্রিপ্ট ইজ দ্য কিং অ্যাকচুয়ালি। আমি সবসময় বলবো যে ইট ইজ আ স্ক্রিপ্ট আনदेखी, এটি এত টান টান একটা স্ক্রিপ্ট, এত মাল্টি লেয়ার্ড একটা স্ক্রিপ্ট, আর এত সুন্দর ফাস্ট পেসি উইথ আনএক্সপেক্টেড টার্নস অ্যান্ড টুইস্ট। আর প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার এত জেনুইনলি বিউটিফুল ক্যারেক্টার, তার ডাইনামিক্স, তার ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনশিপ বিটুইন ক্যারেক্টার্स, নুয়ান্সেस, লেয়ারিং। So सब मिला के this is the script is a fantastic script, and performance, like every character, every actor performed so well। शूटिंग एक्सपीरियंस जहाँ तक अगर बोला जाए कि कि हम लोगों ने मनाली में शूट किया, तो मनाली एक ऐसी जगह है जहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ मतलब उनके वो स्वर्ग है। सो ये देवभूमि है, तो वो वहाँ जाके शूटिंग करना और रियल लोकेशन में शूट करना, वो भी मतलब मार्केट प्लेस में, ब्रिज में, रोड्स में, जंगल में। तो और ओवरवेलमिंग है, मतलब কখনো কখনো তুষারপাত, कभी भी स्नोफॉल हो रहा है, कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी धूप निकल रही है। सो इट इज वंडरफुल ओवरवेलमिंग। एंड टीम बहुत अच्छा है कि of course the creator of the show is Siddharth Sengupta, written by Varun Vadola, Umesh Padulkar, Mahendra Singh. So and directed by Ashish Shukla, nicely directed। and applause के साथ ये मेरा दूसरा शो है। पहला शो तो मेरा applause के साथ क्रिमिनल जस्टिस का। तो ये बिल्कुल स्टार्क ऑपोजिटली डिफरेंट कैरेक्टर है, और मेरा कैरेक्टर इस वेब सीरीज में एक ऐसा कैरेक्टर है कि जो कि मल्टी लेयर्ड है एट द सेम टाइम, कि हु इज एक्चुअली चेजिंग बाय हिज ओन घोस्ट। सो and it's a very lovely sort of experience। The guy is very witty, sharp, at the same time he loves for Bollywood music and Bollywood films, and he loves life, but at the same time his past always like haunting him, and he has to prove something in his life because this is the last year of his service। and he is a completely, if you see the series, he's a completely an outsider and a stranger into the situation, because it is starkly a different wedding altogether। It's a pure rich influential Punjabi wedding। उस wedding में एक बंगाल का एक आदमी जाता है और जाके एक इन्वेस्टिगेशन करता है, तो वो आपको देखने ही पता चल जाता है कि कि he's the odd man out over there। So in every aspect, he's challenged by the situation, by the geography, by everything, by the people over there, and he's all alone in the battlefield। So sometimes वो कखनो कखनो नीचे
ম্যানিপুলেটও করে, মানে কখনো কখনো জিনিসগুলোকে নিজের মতো করে সাজিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। So he is very vulnerable in this society. So overall experience is so overwhelming, and of course people are liking it. तो अभी तो बड़ा बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि और लोग इस तरीके से देख रहे हैं इस सीरीज को कि जब मेरे पास पर्सनल फोन आता है तो लोग बारीकियों से, मतलब एक एक पॉइंट को पकड़ के बात कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लगता है कि हाँ आदमी ने देखा देखा है। क्योंकि ये एक ऐसी ऐसी सीरीज है, जब मैंने पहली बार ये स्क्रिप्ट पढ़ी थी तब मैं उठ ही नहीं पाया था, 10 एपिसोड लगातार पढ़ के गया था मैं। तो तभी मेरे को लगा था ये देखने में यार, जब लोग देखবে এটাকে তখন তো মানে সিট থেকে উঠতে পারবে না। তো এই ধরনের একটা সাসপেন্স থ্রিলার, আর বেসড অন দ্য রিয়েল লাইফ ইভেন্ট, সো দ্যাট ইজ অলসো বিউটিফুল অ্যাসপেক্ট অফ ইট, বিকজ দ্য এন্ড অফ দ্য সিরিজ, পুরো সিরিজটাতেই লোককে এইটাই হন্ট করতে থাকবে কি যে আমরা যে জিনিসটা দেখছি সেটা দেখে কি করে আনদেখি করে দিচ্ছি, মানে আমরা দেখে বলছি না আমি দেখিনি। এবং আমরা শুনলাম একটা জিনিস, আমাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করছি, না আমরা না কিছু শুনিনি। তো এই যে এটা করে কখন, মানে এটা করে কখন, মানে যার এগেনস্টে তুমি উইটনেস হতে যাচ্ছ সে ভীষণ পাওয়ারফুল অ্যান্ড ইনফ্লুয়েন্সিয়াল। তার কাছে লাইফের কোনো দাম নেই, তার কাছে লাইফটা হচ্ছে কি কিরে মাকড়া গেছে। এই সিরিজে একটা খুব ভালো ডায়লগ আছে কি, এই লোকজনদের দিয়ে এত ভাবনা চিন্তার কি, এদের তো না আছে, না কোনো আধার আছে, না আধার কার্ড আছে। তো ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড না कि what they think about the अदर ह्यूमन बीइंग। सो वैसी जगह में जाके ऑडियंस क्या करेगा, मतलब लोग क्या करेंगे, लोग इन्फ्लुएंस के तले दब जाकर बोलते कि नहीं मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं सुना। बिल्कुल सही कहे। तो उस जगह दिव्येंदु मैं मैं जानना चाहूंगा जो इस वेब सीरीज का नाम है अनदेखी, तो UN इंग्लिश से लिखा है, देखी था हिंदी से लिखा है, तो इसके पीछे कोई राज है या फिर ऐसे ऐसे ही सोचा गया था ऐसा नाम दिया जाएगा? नहीं, ऐसा उसके पीछे इट्स लाइक अनसीन का अन है, कि अन है। सीन एंड अनसीन का अन अगर पकड़ लो, और अनदेखी का देखिया पकड़ लो, तो it's more or less like कि we are talking about the conscience of the people of देखने कि कब तक हम ऐसी चीजों को सपोर्ट करते रहेंगे और अनदेखी करते रहेंगे, और चाहे किसी भी तरीके से हो, मतलब कि किसी भी लैंग्वेज में हो, और किसी भी देश में हो, किसी भी प्रांत में हो, और या उसके खिलाफ कोई स्टैंड लेंगे, मतलब कोई तो खड़ा होगा, बोलेगा कि नहीं यार अब। बिल्कुल। So they are the hope comes with DSP वरुण घोष। क्या बात है। तो मुझे बहुत सारे सवाल है जो DSP वरुण घोष के बारे में मैं पूछूंगा, लेकिन तार आगे तारा जानते चाहिए इस वेब सीरीज में हर्ष छाया, बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हर्ष छाया भी नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ सूर्य शर्मा जो है वो भी नजर आ रहे हैं। तो कुछ बताना चाहेंगे, फ्यू वर्ड्स फॉर देम, कैसा लगा उनके साथ काम करके, क्या मन लग रहा? Outstanding team, and they are so beautiful, and that's it. That is the fun part of shooting, and when I shoot for any series, तो मैं बहुत कनेक्टेड रहना चाहता हूँ, मैं कनेक्टेड रहता हूँ, जिंदगी के साथ भी कनेक्टेड रहता हूँ। तो मुझे शूटिंग फ्लोर और शूटिंग के बाहर हमेशा मेरी पार्टी ही चलती रहती है। तो मैं हमेशा, मतलब I believe in fun, and I work in a very relaxed manner. I want to work in a relaxed manner. बड़े काम जो है ना बहुत आसानी से हो जाता है अगर आप रिलैक्स रहते हो। तो इसके चलते मैं सबके साथ बहुत बहुत रिएक्ट करता हूँ, सबके साथ बहुत रिएक्ट करता हूँ, और मैं और ऑफ कोर्स they are good performers, good actors and good human beings। तो मतलब कि एक साथ ऐसे लोगों के साथ काम करना और भी है, मतलब कि देयर आर लॉट ऑफ अदर्स, लाइक आंचल सिंह है, अभिषेक है, अपेक्षा है, अंकुर है, सायनदीप है, मतलब इतने सारे कैरेक्टर्स, इतने प्यारे लोग हैं, और हम इतने मजे करते थे उधर। वरुण भगत है, तो सब बहुत, और एक आपने अपना आइन जो है, अपना शिवांगी, आप एक एक का परफॉर्मेंस उठा के देख लीजिए, सबने बेहतरीन काम किया हुआ है, सबने बेहतरीन काम किया हुआ। तभी एक शो स्टैंड आउट होता है, बिकॉज इट इज अ कलेक्टिव एफर्ट। बिकॉज हम जब ड्रामा को नाटक को खेल क्यों बोलते हैं, प्ले क्यों बोलते हैं,
because you have to play it like a team. सो ये पूरा टीम जब काम करता है किसी भी शो में, चाहे से प्रोड्यूसर से, क्रिएटर से, डायरेक्टर से, डीओपी, बैक स्टेज पीपल एंड द एक्टर, सब मिलके जब एक कोहेसिवली एक काम करते हैं, तभी वो ऑर्गेनिक यूनिटी बनती है आर्ट की, तभी मजा आता है। तो एक किसी बिल्कुल एक सही कहा, एक बिल्कुल। एक के बस की बात नहीं है, एक के बस की बात नहीं, बिकॉज दोनों के आपको बच्चा को एक्टर मिलता है, तब तब आप आपकी एक्टिंग खुद और भी फ्लरिश हो जाती है, क्योंकि को-एक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, मतलब एज गुड को-एक्टर, कि आपको को-एक्टर के लाइंस बहुत अच्छी तरीके से सुनना पड़ता है। अगर अच्छे को-एक्टर हो तो वो किस तरीके से बोल रहा है, जवाब आपको उसी उसको सुन के देना है। सो इट्स लाइक इट्स वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट of your shooting, that you have to get a very good co-actor, and I'm so thankful. बिल्कुल बिल्कुल, पूरी टीम की वर्क होती है जिसके कारण ही एक वेब सीरीज हो, मूवीज हो, सीरियल्स हो, वो इतने हिट होते हैं। और दादा आप तो हमेशा से ही मेरे पूरी फेवरेट रहे हो, अच्छे अच्छे रोल्स में आप नजर आए हैं। मुझे पूरी ये टीम की बताइए, मेहनत होती 20 है। करीब करीब 20 ईयर्स का सफर आपका हो चुका है, मूवीज की बातें करें हम अब, और वेब सीरीज भी आप बहुत अच्छे अच्छे आपने कर लिए हैं। तो दादा आपको क्या लगता है कितना कुछ बदल गया है, क्योंकि अब वेब सीरीज में ज्यादा लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं, डिजिटल मीडियम में ज्यादा जा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे वेब सीरीज जो नया ट्रेंड अभी चल रहा है इसके बारे में? यार देखो, अभी तो हम ऐसे सिचुएशन में, कोविड-19 सिचुएशन में, हम सोशल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन के थ्रू जा रहे हैं। সো এই টাইমে কেউই বাইরে বেরোতে পারছি না। তো हम्म। আমাদের কাছে আর কি আছে? এন্টারটেনমেন্ট। এন্টারটেনমেন্ট আমাদের কাছে হয়তো মানে ফোন করি লোকজনকে, ঘরে বসে ছেলে মেয়েদের, বাচ্চাদের সঙ্গে, বন্ধু বান্ধব সঙ্গে এসব চলতে থাকে কথাবার্তা। আর একমাত্র এন্টারটেনমেন্ট যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম। যে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের হাতে কিছু না, সিনেমা হলে যেতে পারছি না, সিনেমা নেই, থিয়েটার দেখতে যেতে পারছি না, কারণ নাটক কি করে দেখবো, মানে আরো লাইভ হওয়াটা আরো আরো মুশকিলের ব্যাপার। সিরিয়ালের শুটিং হচ্ছে না, রিপিট টেলিকাস্ট চলছে। তো সো অনলি ওয়ান thing is there in right now is OTT platform, and हम्म। and and people are actually watching it right now। वो देख के हम्म। पता चल रहा है कि लोग देख रहे हैं, लोगों को देख रहे कंटेंट हैं। चाहिए। and it is a content driven industry। when an industry is a content driven industry where the script is king, then there you need actors, हम्म। so you need good actors, so, and there are a lot of good actors and are getting work, and and acting in web series। और आगे जाके भी मतलब সমস্ত কলাকুশলীদের জন্য, যে ডাইরেক্টর, যে এডিটর, যে সাউন্ড করছে, এবং সবার সবার কাজের ফ্লোটাও বাড়ছে, কাজের পরিমাণও বাড়ছে, একটারও কাজের পরিমাণ বাড়ছে। আর দিস ইজ দ্য ফিউচার। You can see that, there are few films that, like, which were lined up for the release, তারা হলে রিলিজ না করতে পেরে তারা ওটিটি প্ল্যাটফর্মে রিলিজ করছে। আরেকটা বিরাট করছে। বড় ওটিটি প্ল্যাটফর্মের ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে, এক সময় যখন আমরা ইন্টারন্যাশনাল ছবি, অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টর আমি একটা ইন্টারন্যাশনাল ছবি করতে চাইতাম, ধরো একটা ইন্টারন্যাশনাল ছবি করছি, তখন সেই ছবিটা হওয়া, इट हैज टू बी बेस्ड इन इंडिया, और उसमें कोई इंडियन कैरेक्टर है, और कोई इंटरनेशनल एजेंट आएगा, इंडियन एजेंट के साथ कोलैबोरेट करेगा, तो फिर आपको जाके ऑडिशन मिलता है, फिर आप जाके हो सकता है कास्टिंग हो जाए तो काम करते हो। বাট जी। ইন ওটিটি প্ল্যাটফর্ম হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, কি তুমি কলকাতায় বসে, বম্বেতে বসে, মাদ্রাসে বসে, যেখানে বসে একটা শুটিং করে একটা কন্টেন্ট তুমি যখনই আপলোড করছো, যখনই তুমি রিলিজ করছো, সেটা একসাথে পুরো দেশ দেখতে পাচ্ছে এক সেকেন্ডের চলে মধ্যে। যাচ্ছে, রাইট। এবং এবং কখনো 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 10টা দেশ একসাথে, কখনো কখনো 125টা দেশে একসঙ্গে রিলিজ হচ্ছে, মানে রিচেবিলিটি ইজ, মানে মানে একটা ছবি করেও এত এত হিট করানো যায় না, এত জায়গায় রিচ করা যায় না, মানে যেই হিসেবে একটা একটা ওয়েব সিরিজ রিচ করে লোকের কাছে। তো অফকোর্স জেনুইন প্রত্যেকটা আসপেক্টের দিক থেকেই দেখা গেলে, এন্ড ইট ইজ ফিল্ম, ইট ইজ সিনেমা, বিকজ আমরা ওয়েব সিরিজ আমরা যখন শুট করি তখন সিনেমার মতোই করে শুট করি। এবং এবং আরো মজার বিষয় আমার আমার লাগে কখনো কখনো, যে এটা একটা সিনেমা আমরা 1.5 ঘন্টা ধরে দেখছি, এটা 3 ঘন্টার সিনেমা, ওকে হ্যাঁ। মাঝখানে ব্রেক করা আছে। তো অ্যাজ আ ফর্ম অলসো, অ্যাজ আ প্ল্যাটফর্ম অলসো, আমার খুব মজা লাগছে এই এই প্ল্যাটফর্মটাকে দেখে। এবং কখনো কখনো কিছু শো হয়ে যায়, যেমন আমাদের আনदेखी প্রচুর বিঞ্জ ওয়ার্দি শো, মানে একবার দেখতে বসলে আর ওঠা যায় না। তো এরকম শো দেখলে তো মানে আরো ভাল লাগে, মানে কি একটা 3 ঘন্টা
ছবি দেখে উঠলাম, ইটস লাইক সো ওভারওয়েলমিং, क्या অনেক কিছু দেখা যায়। बिल्कुल सही कहा। तो एक बार फिर से हम অ্যান্ড डीएसपी অফকোর্স মানে লোকের बोलूं। जी बोलिए, কাজের बोलिए दादा। হ্যাঁ বলুন, হ্যাঁ দীপক দাদা নেই। বলুন। সো দ্যাট ইজ আই এম টেলিং ইউ, ইট ইজ লাইক ইট ইজ দ্য ফিউচার, ইট ইজ দ্য ফিউচার অফকোর্স দ্য ইন্ডাস্ট্রি, ইটস দ্য ফিউচার ইন্ডাস্ট্রি। এরকম ভাবে আরো 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 হবে, মানে এটা আরো ফ্লারিশ করবে, আর লোকজন আরো কাজ করবে, খুব ভালো, মানে এটা খুব ওভারওয়েলমিং। সুপার। ওকে দাদা, একটু বলো ডিএসপি বরুণ ঘোষকে লেকে একবার ফির সে अगर हम बातें करें, এই রোলটার জন্য কি তোমায় কিছু হোমওয়ার্ক করতে হয়েছিল, কি কি জিনিসে তুমি কনসেंट्रेट করেছিলে, क्योंकि पुलिस ऑफिसर का रोल वैसे आपने तो पहले भी किया है, बहुत अच्छे अच्छे रोल्स आपने किए, तो এই জন্য কিছু আলাদা কিছু ফোকাস করতে হয়েছিল, হোমওয়ার্ক করতে হয়েছিল? অ্যাকচুয়ালি আমি যেটা আমার আমার যে প্রস্তুতি যেটা আমি নিই, মানে যেটা প্রত্যেকটা চরিত্রের জন্য একটা প্রস্তুতি যে নেওয়া, সেটা আমি একজন অভিনেতার প্রস্তুতি নিচ্ছি। হুম একজন অভিনেতার কি প্রস্তুতি থাকা উচিত, মানে ক্যারেক্টার তো পরের কথা, ক্যারেক্টার যখন আসছে সেই ক্যারেক্টারটাকে নিয়ে তার 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 সঙ্গে আইডেন্টিফাই করা, তার ক্যারেক্টারাইজেশন করা, তার সেই হিসেবে এক্সিকিউট করা, এগুলো তো পরবর্তীকালে, কিন্তু অ্যাক্টারের যে প্রিপারেশন থাকা দরকার, সেইটাতে আমি খুব বিশ্বাস করি যে একজন অভিনেতা সে তার 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 জীবনবোধটাই হচ্ছে কি তার সব থেকে বেশি বড় কথা, সে জীবনের সঙ্গে কতটা জড়িত আছে, সে তার পরিবারের সঙ্গে কতটা জড়িত আছে, সে মানুষের সঙ্গে কতটা জড়িত আছে, সে তার বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে কতটা জড়িত আছে, এবং সে তার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিতে তার ওয়াচম্যান, কাজের লোক, সবার সঙ্গে তার যে একটা বন্ধন, একটা একটা ঘনিষ্ঠতা, সেইটাতে একটা অভিনেতাকে খুব কানেক্টেড রাখে লাইফের সঙ্গে এবং জীবনের সঙ্গে, এবং এখানে সেখানে সেখানে সেই নন জাজমেন্টাল হয়ে প্রত্যেকটা জিনিসকে অবজার্ভ করা এবং সেটাকে নিজের মধ্যে করা। সো এই পুরো ব্যাপারটা একটা অভিনেতার প্রস্তুতি, তার সঙ্গে মিউজিক শোনা, গান শোনা, ভালো ভালো হুম বই পড়া, উপন্যাস পড়া, সেখান থেকে তোমার ইমাজিনেশনের একটা নিজের দরজা খোলা, ভালো ভালো ছবি দেখা, কি কাজ হচ্ছে, এবং ইনফরমেশন, নলেজও দরকার, কি সারা পৃথিবীতে কি হচ্ছে, সেটা আর্টেরও ইনফরমেশন দরকার, সে নাচছে সেখানেও তো এই যে সামগ্রিক জ্ঞান এবং সামগ্রিক যে উইজডম, সেইটা একটা অভিনেতার প্রচন্ড কাজে দেয় আমার বলে মনে হয়। তারপরে তো হুম অবশ্যই আছে কি চরিত্রায়ন, যে চরিত্র যখন পাচ্ছি আমি, সেই চরিত্রের মধ্যে কিভাবে ঢোকা যায়। কিন্তু যদি দেখা যায় যে একজন অভিনেতা যদি এরভাবে রিলেটেড থাকে, পুরো নিজেকে রিলেট করতে পারে এবং কানেক্টেড থাকে, তাহলে এই প্রত্যেকটা চরিত্র কিন্তু জীবন থেকে আসে। ট্রু। যে জীবন থেকে আসা যে চরিত্রগুলো, সেগুলোকে বুঝতে অসুবিধা হয় না, যেগুলোর সঙ্গে আইডেন্টিফাই করতে কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু তখন হুম কারণ সেটা হচ্ছে কি তার সঙ্গে একটা এই একটা আত্মার সম্পর্ক, একটা প্রাণের সম্পর্ক, একটা রাইট। হৃদয়ের সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায় ওই চরিত্রটার সঙ্গে। তার কারণে সেই চরিত্রটা তখন আমি হতে শুরু করে দিই, তার কারণে ওই হুম চরিত্রটার সম্বন্ধে আমি সমস্ত কিছু জানতে পেরে গেছি, তাই সেই চরিত্রটার কোরে আমি ঢুকে যাই, যাওয়ার চেষ্টা করি, সেটাই আমার প্রতিনিয়ত চেষ্টা। মানে আমি এখনো পর্যন্ত লার্নার, আমি এখনো পর্যন্ত শিখছি, এবং এর জন্য আমি প্রতিবার যখনই আমি কোনো পারফরমেন্স করি, তখনই আমার কাছে এই ব্যাপারটা একদম একটা নতুন চরিত্র বলে মনে হয়, যেটা আমি কোনোদিন করিনি, যেটা আমি কোনোদিন দেখিনি। তো আমার একটা আমার মধ্যে থেকে একটা গ্র্যাটিচিউড আছে, যে মাফ করবেন, আহ আমি আপনার চরিত্রে অভিনয় করতে যাচ্ছি, তাই আমি আমি তখন ওর মধ্যে যাওয়া শুরু করি, ওটাকে নিয়ে ডেভেলপ করা শুরু করি। তো এটা একটা খুব একটা নিজস্ব একটা প্রস্তুতি হয় আমার, সেটা প্রচন্ড প্রচন্ড ব্যক্তিগত প্রস্তুতি, সেটা তো বলতে গেলে অনেক অনেক কিছু বলতে হয়। কিন্তু হ্যাঁ, ওই মানে ওয়েল প্রত্যেকটা ওয়েল চরিত্রের একটা, থাকে হ্যাঁ। প্রত্যেকটা ওয়েল চরিত্র সেটাই আমি জীবন থেকে বলছিলাম আসে कि তো। एक হ্যাঁ। हाँ सेटाई হ্যাঁ। एक अच्छे अच्छे एक्टर की ये भी निशानी होती है, जो देख कर अपने अंदर में उस कैरेक्टर को लेकर आ जाए, वो आप सबसे अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि हमने देव दी में देखा था, आपके किरदार को बहुत पसंद किया गया था चुमनी। একটু যদি ওই এক্সপেরিয়েন্সটা দাদা একটু শেয়ার করো না, দেব দিতে তোমার ক্যারেক্টারটাকে খুব পছন্দ করা হয়েছিল, সেটা একটু যদি শেয়ার করো আমাদের সাথে আজকে, যখন তোমাকে পেয়েছি আমরা একটু জানতে চাই দাদা। আর দেবদি আমার কাছে একটা খুব খুব প্রিয় ছবি, কারণ অনুরাগ আমার বন্ধু, এবং আমি অনুরাগের সঙ্গে তার আগে কাজ করেছি ব্ল্যাক ফ্রাইডেতে, এবং আমরা অনেক আলোচনা, ডিসকাশন, ওঠা বসা, তো
তো আমাদের এক সময় তো খুবই মানে জানাশোনা, আমরা খুব মানে তখন যখন আমাকে একদিন আমাদের ব্ল্যাক ফ্রাইডে একটু স্টে হয়ে গেছিল, হল্ট করে গেছিল, তো কারণ পিটিশন এসে গেছিল, কারণ সমস্ত রিয়েল লাইফ ক্যারেক্টার আমাদের নাम फाम रखा হয়েছিল। सो दैट इज वाई फिर वो एक्चुअली वो थोड़ा स्टे आ गया था, तो वो रिलीज नहीं हो पा रही थी। और जी। तो और उस टाइम जब देवजी कंसीव कर रहे थे, तो उस टाइम बोला कि यार अगर ब्लैक फ्राइडे अगर चल जाती है तो देवडी में तो चुड़ीलाल। तो तो सॉरी, थोड़ा लाइट ऑफ हो गया मेरा, कोई एक नहीं सर, लाइट ठीक जो दिख रहा है, ठीक है ना। ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছি, হ্যাঁ একদম পারফেক্ট আছে দাদা। ओके ओके। तो হ্যাঁ। तो उसने मेरे को कहा कि अगर देवडी रिलीज हो जाए और देवडी अगर चल जाए तो फिर तो चुन्नीलाल करेगा। तो वो देवडी चल गई थी और रिलीज हो गई थी, चल गई थी, तो मुझे चुन्नीलाल का रोल मिल गया था। और तो फिर हमने किया, बड़ा मजा आया उसमें, क्योंकि एक बहुत अच्छे ग्रुप की तरह उधर भी हमने काम किया था। और सारे जी। लोग के अपना माही वॉज न्यू कमर, कल्कि वॉज न्यू कमर, एंड हम्म। अभय अभय वॉज देयर, एंड मैंने भी थोड़ा सा कुछ काम किया हुआ था। और बाकी तो सारे मतलब लोग के, और इतना मजा आता था उस टाइम। और पहाड़गंज में हम शूटिंग करते थे, तो कभी कभार स्ट्रीट में से जाते हुए तो मुझे एक दिन याद है। और एक्चुअली क्या है ना, अब अगर देखोगे तो मेरा कैरेक्टर जो है तो देव जी ने, कि मैं थोड़ा सा सर से लेके पाँव तक बोरोड इंसान हूँ ना देव जी में, कि जी। मतलब किसी का जैकेट है, किसी का जूता है, किसी कोई इजरायली छोड़ के गया जूता तो इस जूता पहन लिया, कोई इटालियन जी। आदमी छोड़ के गया तो इस टाइप का ही इज ऑलमोस्ट लाइक अ पैरासाइट टाइप का एक बंदा था वो, चुन्नीलाल, जो दूसरों पे जीता था वो। तो ये उसका धंधा था। तो मेरा, और मेरे बालों में थोड़ा सा लंबे लंबे बाल थे, तो उसमें बीड्स भी जी। लगते थे। तो इन के तो तो ये मेरा हेयर स्टाइल होता था पहले पहले। इतना हेयर स्टाइल जो मेरा होता था, जो जो और हीरोइन का भी नहीं होता उतना मेरा हेयर स्टाइल, तो इतना हेयर स्टाइल में मेरा टाइम जाता था। और क्या बात है। हाँ तो और एक बार क्या हुआ था, एक बार मैं, काफी बहुत एक्सपीरियंसेस है। एक बार मैं रास्ते में स्कूटर चला के जा रहा था, एक शॉर्ट था कि स्कूटर के चलते अचानक बीच में देव का फोन आ जाता है। तो बोलो मालिक करके वो स्कूटर रोकता है और फोन उठाता है, बोलो मालिक करके। तो वो पहाड़गंज में इतना बिजी रोड, 7:30 बजे, मतलब पूरी ऑफिस क्राउड ऐसे हु करके जा रहे हैं, मतलब उनके স্কুটার গাড়ি ফাড়ি সব চলছে, আমি সেখানে মাঝখানে, হ্যাঁ। পেছনে আমি সেখানে মাঝখানে স্কুটার নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি। ও। तो जे जे पाচ্ছে আমাকে এদিক দিয়ে যাচ্ছে, এদিক দিয়ে যাচ্ছে, अबे पागल हो गया क्या, अबे सुसाइड करना है क्या, अबे मरना है क्या, अब मरना है तो किसी और दूसरे रास्ते में जाना, मेरे गाड़ी के सामने क्यों, मतलब ये चलता है, হ্যাঁ। चल ही रहा था। ইউটিউবে। और হ্যাঁ। बोले कि जब फिर दो लोगों को पता भी नहीं चला कि वो शूटिंग चल रही है, लोगों को पता भी नहीं लगी, শুটিং क्योंकि চল रहा है, राइट। पीछे वाली गाड़ी जो आगे खड़ी हुई थी, उसी में कैंडिड कैमरा बैठा हुआ था, सब कुछ। कैमरा। तो काफी मतलब बहुत मजेदार एक्सपीरियंस था एक्चुअली दिल्ली। तो हाँ, तो बिल्कुल। अभी भी तो एंजॉय तो करते मैं हैं, बिकॉज सर। ऑफ कल्ट हाँ। कल्ट क्लासिक है, मतलब वो गेम चेंजिंग फिल्म ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। सो बिल्कुल। क्योंकि कितने लोगों ने मुझे देवडी के बाद बोला कि मैंने हमने 6 बार देखा, हमने 7 बार देखी, हमने 8 बार देखी, वो कि इस तरीके, वो तो वो यंग जनरेशन को उस टाइम तो थोड़ा सा झकझोर दिया था वो। जी। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो मैं जानना चाहूंगा दिव्येंदुदा, हमें बताइए कि 20 इयर्स हो गए हैं इंडस्ट्री में, आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे रोल्स किए हैं। जब ने हमने देवडी की बातें की तो मकबूल की और लुटेरा की भी बातें होनी चाहिए, साथ ही साथ वेब सीरीज एक के बाद एक अच्छी अच्छी वेब सीरीज आपने की है, सेक्रेट गेम से क्रिमिनल जस्टिस की बातें करें, डेली क्राइम की अगर हम बातें करें, तो दादा যারা তোমাকে দেখছে রাইট নাও, क्योंकि अभी जो माहौल चल रहा है सभी थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, खास करके हम एक्टर्स की अगर हम बातें करें, তাদের জন্য তোমার কি মেসেজ থাকবে? তোমার কি এত এত লম্বা যে এক্সপেরিয়েন্স তুমি যেটা পেয়েছো, একটু যদি শেয়ার করো তাদেরকে কি করা উচিত এখন এই টাইমে, পজিটিভ नहीं, থাকার জন্য কি করা উচিত? मैं आई ऑलवेज बिलीव इन सच थिंग दैट कि हाइज एंड लोज, दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ, के बिकॉज ये ह्यूमन सिविलाइजेशन का ये तरीका है, ह्यूमन सिविलाइजेशन की ये तरीका ये है कि अगर आज कोई पैंडेमिक है,
मतलब वर्ल्ड वॉर है, ये है वो सब कुछ है, उसके बाद ह्यूमन सिविलाइजेशन तो बाउंस बैक करेगा ही। ये तो धर्म है। मतलब हम तो वी आर एज अ रेस, तो हम तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे बिलीव करते हैं ना, तो मतलब उनके, तो हम तो बाउंस बैक करेंगे, तो बाउंस बैक जब करेंगे तब फिर से सब कुछ नॉर्मलाइज होगा। तो इसीलिए जो कोई भी चीज मेरे को लगता है जिंदगी में उस फेज की तरह उसको निकाल देना चाहिए, चाहे वो बिल्कुल सही कहा। हाइज हो या लो हो, उसको फेज की तरह निकाल देना चाहिए। उसको उसको लेकर जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी एक फेज है, ये दौर भी जाएगा और फिर हम काम करेंगे इंशाल्लाह। तो तो एक तो यही मैं हमेशा कहना चाहता हूँ लोगों से कि मैं जो जिस तरीके से बिलीव करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ जिंदगी में कि स्टे कनेक्टेड विद द लाइफ, विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स एंड एवरीबडी। उसमें बहुत नुआंसेस है जिंदगी के, मतलब उन लोग की वो सारी चीजें आपके आपके मेमोरी बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाइज में भी आपका जैसे कुछ चीजें मिलती है, वैसे जब हम लो रहते हो तभी भी आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, तो आपको मालूम होता है। तो जिंदगी तो प्रोसेस ही है ना, लर्निंग एंड अनलर्निंग की। तो अब उसको एक प्रोसेस की तरह लेना चाहिए लाइफ को। सो you have to face life, you have to fight it out, so life is like that. So that is the motto. So इसलिए मैं, मेरा मेरा भी ये है कि मैं अभी जिंदगी भर काम करता रहा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे कल कब रणजी ट्रॉफी में चांस मिलेगा, या कब इंडिया टीम में चांस मिलेगा, या कब अंडर 19 में चांस मिलेगा। पर नेट प्रैक्टिस तो चलते रहना चाहिए ना, तो मतलब शिद्दत से करते बिल्कुल रहना सही चाहिए। तो ऐसा ना हो कि कल आपको रणजी में ट्राई चांस मिला और जाके आपने अपने आप बोल्ड हो गए या फिर एलबीडब्ल्यू हो गए, वापस से डक पे आउट हो गए, मतलब तब तो आपको ये दिखाना पड़ेगा ना कि यू आर रेडी फॉर द बैटल, यू आर रेडी फॉर इट। सो आप, दैट इज योर, दैट जो चीज आपके हाथ में नहीं है उस चीज के लिए चीज को लेकर क्या टेंशन करना है, जो हाथ में है वो छूटना नहीं चाहिए इस चक्कर में। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल सही कहा। जाते जाते सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके दिव्येंदुदा। जाते जाते যারা শুনছে তোমাকে দেখছে রাইট নাও তাদের জন্য কি মেসেজ থাকবে, क्योंकि सोनी लिव पे हम आपको देख रहे हैं, अनदेखी में देख रहे हैं ডিএসপি বরুণ চন্দ্রা তাদের নিজের ফ্যান্সদের জন্য কি মেসেজ দেবে, তাদের জন্য কি মেসেজ থাকবে স্যার? মেসেজ, আই এম সো গ্রেটফুল, আই এম সো থ্যাঙ্কফুল ফর ইউ গাইজ দ্যাট জনতা জনার্দন, আপনারা যদি না থাকেন তাহলে আমাদের কোনো এক্সিস্টেন্স নেই। তার কারণ হচ্ছে কি আপনারাই হচ্ছে কি আমাদের অ্যাপ্রিসিয়েট করবেন, তখনই আমরা ভালো কাজ করতে উই ক্যান, দ্যাট মোটিভেটস আস টু ওয়ার্ক হার্ড অ্যান্ড এন্টারটেন ইউ। সো প্লিজ কিপ অন ওয়াচিং মাই শো অ্যান্ড ऑल माई शोज प्लीज। अभी अनदेखी है, लाल बाजार भी था कुछ दिन पहले रिलीज हुई थी, वो भी जी अभी स्ट्रीमिंग पे है। तो मेरे पीछे शोज भी है, क्रिमिनल जस्टिस, फिंकिस्तान, सेक्रेट गेम्स पार्ट 1, सब सब प्लीज जामतारा, सब देखिए। धनबाद ब्लूज भी मैंने किया था, बंगाल में एक शो किया था, एक सीरीज किया था होइचई के लिए। तो सब देखिए, सब सराहिए, और अभी तो अनदेखी अब देखिए प्लीज, और भी लोगों को दिखाइए मेरे सीरीज और मेरा काम देखिए, और बताइए मैं कैसा काम करता हूँ, बिकॉज मैं बहुत वर्सटाइल काम करने की कोशिश करता हूँ। और कभी कभार मैं ऐसे क्रूड कैरेक्टर भी करता हूँ जैसे कि क्रिमिनल जस्टिस, और उसके चलते मुझे बहुत हेट मैसेजेस भी आते हैं। और मैं बुरा नहीं मानता हूँ, मुझे लगता है कि ये शायद मेरे रिकॉग्निशन है, ये शायद शायद बिल्कुल यही शायद मेरे अवार्ड्स है। तो जो मैं जो मुझे क्रिमिनल जस्टिस में देख के गुस्सा हो गए थे, वो अनदेखी देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि मैं एक कैरेक्टर हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, और मैं किरदार को प्ले करता हूँ। तो प्लीज 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 कीप अप्रिशिएटिंग माई वर्क, कीप वॉचिंग माई वर्क, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल द सपोर्ट, लव एंड हेल्प। बिल्कुल बिल्कुल, हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है जब हम आपको देख रहे हैं डीएसपी वरुण घोष के रोल में सोनी लिव के नए वेब सीरीज अनदेखी में। थैंक यू सो मच दिव्येंदुदा আমার সাথে কথা বলার জন্য, খুব ভালো লাগলো তোমার সাথে কথা বলে। অল দি বেস্ট এন্ড ইউ আর দি বেস্ট স্যার। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अनिमेश, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। वेल हमारे साथ दिव्येंदु सर थे जिनके साथ हमारी बातें हो रही थी। बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है और बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में वे पहले भी नजर आ चुके हैं और इस वक्त सोनी लिव के अनदेखी वेब सीरीज में नजर आ रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। हर्ष छाया
वेरी टैलेंटेड एक्टर हर्ष छाया भी नजर आ रहे हैं इस वेब सीरीज में। तो जाइए सोनी लिव पर जाकर आप चेक कर सकते हैं और इस वेब सीरीज को देख सकते हैं। 10 सीरीज की है, 10 एपिसोड्स की ये वेब सीरीज है, आप जाकर इसे एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच।